Okay, now in our last session, we have finished out our unit number 2, that was consideration. Now, up to the point, we have gone through the 3 essential elements of creating a valid contract. Number 1, there must be a clear, definite offer by one person. Number 2, there must be the absolute and unconditional acceptance of that particular offer by the other person to whom the offer is made. Number 3, essential required for the creation of a valid contract is that there must be a consideration for creation of a valid contract, and we discussed the section 25 for that, in which we have saw that an agreement without consideration will be considered as a void. Okay, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने कंसिडरेशन का यूनिट खत्म किया है, जिसमें हमने इन और 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। कंसिडरेशन मतलब क्या है और लीगल रूल्स एज टू द कंसिडरेशन डिस्कस किए। नंबर 2 रूल डिस्कस किया, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट sue and cannot be sued, but this rule is subject to exceptions, so we gone through the exceptions to this particular rule. And number 3, an agreement without consideration is considered as a void. This rule is also subject to some exceptions, so we have discussed that exception कि जब consideration नहीं भी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस भी हमने क्या किया वहां पे डिस्कस कर दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 3, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और इस यूनिट नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, we are going to deal with the other essential elements of a valid contract। हाँ, जैसे कि हमने सेक्शन 10 के अंदर डिस्कस किया था, an agreement to become a contract, it must be supported by certain essential elements। हाँ, right, like for example क्या डिस्कस किया था, the parties to the contract must be competent to make a contract। हाँ, जैसे कि वो sound mind चाहिए, वो major चाहिए, not disqualified by law चाहिए। Number 2, the consent of the parties must have taken freely for the creation of valid contract। Number 3, there must be a lawful consideration and lawful object for the creation of a valid contract। And number 4, your contract should not be the one which is expressly declared to be void by the law। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इस यूनिट नंबर 3 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इन 4 अदर एसेंशियल एलिमेंट्स को। हाँ, पहले डिस्कस किए वो 3, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन, और अब 4 और अदर एसेंशियल एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। फ्री कंसेंट चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट चाहिए, एंड एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void। Okay, so let's start with your unit number 3, in which actually today we will start our other essential element के लिस्ट में से फर्स्ट पॉइंट। ओके, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, अब शुरू करेंगे। हाँ, so let's start with the unit number 3, and this unit number 3, as I already told you, is about, इसके बारे में बताओ, other essential elements of a valid contract के बारे में। ये unit number 3 हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। You can see here we're going to start your unit number 3, and this unit number 3 is about other essential elements of a valid contract के बारे में क्या है। ये यूनिट नंबर 3 हम लोगों को स्टार्ट करना है, other essential elements of valid contract। हाँ, I already told you just now that in this particular unit जो points हम सारे डिस्कस करेंगे उसका एक ओवरव्यू चार्ट मॉड्यूल में बना के दिया हुआ है, and that overview chart given in the module are essential elements of valid contract will discuss, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट विल बी आवर फर्स्ट पॉइंट, जिसमें फिर हमें डिस्कस करना है 3 चीजों को, कि पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेजर, नंबर 2 द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी साउंड माइंड, एंड नंबर 3 द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ। ठीक है, number 2 essential element from this unit will discuss that the parties must have given their free consent for the making of a contract। I already told you that only consent is not enough। Okay, so for creation of a valid contract what is required is that the consent must be free। और consent free कब होगी बोलो, आप सबको पता है, हमने यूनिट नंबर 1 में डिस्कस किया है। consent will be free if it is not caused by coercion, physical force, undue influence, moral force, fraud, intentional false statement, misrepresentation, innocent false statement, and mistake, error of a thought। हाँ, तो consent should not have been caused by the coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, या mistake। Then another essential element from this particular unit we will discuss for creation of a valid contract required is that
there must be the lawful object and lawful consideration for creation of a valid contract. And the last one required from this unit for creation of a valid contract is your agreement should not be the one which is expressly declared to be void. Okay, तो इन सारे चार अदर एसेंशियल एलिमेंट्स को हमें क्या करना है इस यूनिट के अंदर डिस्कस करना है. ठीक है. So you can see here it has been already discussed an agreement result from a proposal by one party and acceptance by the other party. Discuss किया हमने already unit number 1 में कि for creation of a valid contract one party must make a proposal, another party must give acceptance. We already discussed offer, acceptance, consideration in detail. Now we will discuss in detail the other essential element which constitute a valid contract which is enforceable by law. हाँ, अब यूनिट में क्या करेंगे हम लोग अदर एसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर. हाँ, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड दैट एन एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट सैटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस. एक एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना होगा तो कुछ एसेंशियल कंडीशंस को सैटिस्फाई करना पड़ेगा. जैसे कि नंबर 1 क्या चाहिए, देखो द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट चाहिए. नंबर 2 the contract must have made with the free consent of the parties. Number 3, it should have been made for a lawful consideration and lawful object. And number 4, it should not be expressly declared to be void. ध्यान में आ रहा है कि देखो for creation of a valid contract parties competent चाहिए. Number 2, free consent of the parties चाहिए. Number 3, lawful object and lawful consideration चाहिए. And number 4, it should not be expressly declared to be void. Out of this first point, the parties to the contract must be competent, जिसे हम क्या और एक नाम से जानते हैं capacity to contract, competency to the contract. हाँ, ऐसे points का heading हो सकता है, meaning दोनों का same ही है. तो parties to a contract must be capable of making the contract. हाँ, that is the very first essential element from the unit number 3 we are going to discuss. और मैंने आपको बताया इसमें हमें 3 चीजें discuss करनी है. Number 1, the parties to contract must be major. Number 2, the parties to contract must be sound mind. And number 3, the parties to contract should not be disqualified from making the valid contract. So, should not be minor, should not be unsound mind, and should not be declared to be disqualified. So, ये 3 points को in depth हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करना शुरू कर देंगे. उसमें से very first point we are going to discuss that is capacity to contract. हाँ, और इन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में हमें 3 पॉइंट डिस्कस करने आपको पता है. मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. बट बिफोर गोइंग टू दैट ऑफ कोर्स हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा बोलो. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, हु इज द कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, that one we are going to discuss. Okay, section 10 सबको याद है. अब सबको section 10 में हमने क्या डिस्कस किया था याद है, essential elements of valid contract की लिस्ट वो section 10 में दी गई है. और अब वो लिस्ट शुरू होती है कहाँ से, section 11 से. So section 11 is about competency to contract. हाँ, who is a competent to contract, इसका जो पॉइंट है वो कौन से सेक्शन में दिया गया बोलो, सेक्शन नंबर 11 में दिया गया. सबसे पहले रीड आउट करते हैं हम लोग और अंडरस्टैंड करते हैं कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है. सो मीनिंग इज द फर्स्ट पॉइंट. हाँ, कैपेसिटी रेफर्स टू द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पार्टीज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, कैपेसिटी मतलब पार्टीज की कॉम्पिटेंसी, हाँ उनकी क्षमता कॉन्ट्रैक्ट करने की. इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो दो नाम सेम है. कैपेसिटी मतलब ही क्या आ जाएगा बोलो, कॉम्पिटेंसी टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाएगा. नाउ देखो हु इज अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन कौन सा डिस्कस करना है हमें, सेक्शन 11 हमें डिस्कस करना है. हाँ, एवरी पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ द मेजॉरिटी. क्या है वो वहां पे मेजर है. हाँ, एवरी पर्सन क्या बता रही थी मैं आपको, एवरी पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, हु इज ऑफ द एज ऑफ द मेजॉरिटी, जो मेजर है according to the law to which he is the subject, and who is of a sound mind and is not disqualified from contracting by law to which he is the subject. कौन competent to contract है देखो, every person is a competent to contract who is of the age of majority. First point क्या गया ध्यान में आ गया, वो major है according to the law to which he is subject. मतलब ना suppose इंडिया में majority age अलग होगा, शायद ऑस्ट्रेलिया में अलग होगा या शायद यूएसए में अलग होगा, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में 18 कंप्लीट इज द मेजॉरिटी एज. बट जानबूझ के वो पॉइंट दिया है अकॉर्डिंग टू द लॉ टू व्हिच इज द सब्जेक्ट.
जिस भी लॉ के अंडर आप बात कर रहे हो उस लॉ के नीचे जो एज ऑफ मेजोरिटी उस लॉ के हिसाब से वो मेजर होना जरूरी है. So every person is a competent to contract who is of the age of a majority according to which he is a subject. And number 2 is of a sound mind. जो क्या है बोलो वहां पे sound mind है. And number 3 is not disqualified from contracting by law to which he is a subject. हाँ, number 1 वो major होना चाहिए, number 2 वो sound mind होना चाहिए, and number 3 क्या required है देखो वो disqualified by law नहीं होना चाहिए. These 3 points are required for making the valid contract. Okay. Now इस section को हम लोग क्या करते देखो analyze करते. ठीक है. This section we are going to deal, and this is talking about the personal capacity of the 3 type of individuals. Number 1 क्या चाहिए देखो, for creation of a valid contract he must have attained the age of majority चाहिए. Number 2 he must be of a sound mind चाहिए. And number 3 is not disqualified from making the valid contract. लॉ ने उसको लॉ कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई किया हुआ नहीं होना चाहिए. एज ऑफ मेजॉरिटी चाहिए, नंबर 2 साउंड माइंड चाहिए, and number 3 not disqualified from contracting by any law to which is a subject. ठीक है. नंबर 1 क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, एज ऑफ मेजॉरिटी. याद रखो इंडिया में जो एज ऑफ मेजॉरिटी है वो कौन से लॉ के नीचे दिया गया है बता, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंडर दिया गया है. और एज ऑफ मेजॉरिटी कितना पता है आप सबको अच्छे से पता है ऑफकोर्स. हाँ, 18 completed is the age of majority. Remember 18 running नहीं, 18 completed is considered to be age of majority. देखो in India the age of majority is regulated by Indian Majority Act 1875. हाँ, every person domiciled in India shall attain the age of majority at the completion of the 18 year of the age and not before. हाँ, जो भी इंडिया में डोमिसाइल्ड है, इंडिया में रहता है, हाँ, उसका एज ऑफ मेजॉरिटी क्या होगा बोलो, कंप्लीटेड 18 ईयर. जब वो 18 कंप्लीट होगा तभी उसको क्या कंसिडर किया जाएगा बोलो, मेजर कंसिडर किया जाएगा. हाँ, द एज ऑफ मेजॉरिटी बीइंग 18 ईयर, अ पर्सन लेस देन दिस एज इवन बाय अ डे would be a minor for the purpose of contracting. हाँ, तो एज ऑफ मेजॉरिटी 18 होने की वजह से जो एक दिन भी छोटा है 18 से, हाँ, उसको माइनर कंसिडर किया जाएगा. हाँ, सो व्हेन अ पर्सन कंप्लीट्स हिज 18 ईयर ऑफ एज, हाँ, 18 उसका कंप्लीट होगा तभी क्या होगा बोलो, वहां पे वो मेजर कंसिडर किया जाएगा. नाउ हम एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है जो इवन तो हमारे मॉडल में नहीं दिया है. देखो अगर किसी पर्टिकुलर माइनर के प्रॉपर्टी पे कोर्ट के थ्रू गार्डियन अपॉइंटेड है, समझो किसी माइनर के प्रॉपर्टी पे कोर्ट के थ्रू गार्डियन अपॉइंटेड है, तो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट वहां पे अप्लाई होता है. और गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के नीचे उस माइनर का मेजॉरिटी जो होगा वो अटेन होगा एट द एज ऑफ द 21 ईयर्स. एक नॉलेज के लिए हम लोग ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इवन दो मॉड्यूल में नहीं दिया. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो इन ऑल केसेस द एज ऑफ मेजॉरिटी विल बी कंसिडर्ड एज 18 कंप्लीट. ओके, जिस भी किसी का 18 ईयर कंप्लीट हुआ है वो क्या कंसिडर किया जाएगा, वहां पे मेजर कंसिडर किया जाएगा. बट द पॉइंट व्हिच इज स्टेटेड नॉट इन द मॉड्यूल बट एज अ नॉलेज वी आर गोइंग टू टेक आउट, वो क्या है वहां पे, अगर किसी माइनर के प्रॉपर्टी पे गार्डियन अपॉइंटेड है कोर्ट के थ्रू, तो प्रॉपर्टी का नॉलेज इतना 18 में वगैरह नहीं आता है ना, तो इसकी वजह से वहां पे मेजॉरिटी एज कितना रखा गया है, 21 will be considered as a majority age for a minor and his property when a guardian is appointed over the property of a minor by the court under the guardian and ward act. हाँ, बट ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको थोड़ा सा साइड में ही रख दो. और आप कहाँ पे आ जाओ, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के हिसाब से जो भी इंडिया में डोमिसाइल्ड है उसका एज ऑफ मेजॉरिटी क्या कंसिडर किया जाएगा, 18 कंप्लीट. ओके, इवन ही इज लेस देन one even if he is a 1 year less than 18 year, he will be considered as a minor. A person less than the age of 18 year, even by a single day भी उसका 18 year से कम है तो भी वो माइनर कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो हमें क्या पता चला, ध्यान में आपको,
who is a major, क्योंकि हमारा सेक्शन 11 क्या बोल रहा है ध्यान में आपको, फॉर क्रिएशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पार्टी मस्ट बी मेजर, और मेजर कौन है, जिसने 18 ईयर ऑफ एज कंप्लीट किया है, वो क्या कंसिडर किया जाएगा, बोलो मेजर कंसिडर किया जाएगा। हाँ, तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम इन आवर माइंड इज दैट व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। हाँ, ये तो हमने डिस्कस किया। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ अ माइनस एग्रीमेंट, अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही देता है समझो, तो उस माइनर के एग्रीमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, वो पोजीशन हमें क्या करनी है, यहाँ पर डिस्कस करनी है। हाँ, और वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है वो क्या है, सबको याद है, माइनस एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड एज अ वॉइड। हाँ, और ओनली वॉइड नहीं है, वॉइड एब इनिशियो। रिमेंबर ऑल ऑफ यू द फ्रेज एब इनिशियो, याद है सबको। एब इनिशियो मतलब क्या था, फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम शुरू से ही उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, void. The day one minor made an agreement, it will be considered as a void. Okay, so it will be void ab initio. Minus agreement is considered as a void ab initio. और इसका एक famous judgment है जो हमें डिस्कस करना है, and that famous judgment for this particular point is a मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का डिस्कस करना है हमें। देखो मैं अपने भाषा में आपको क्या करती हूँ, समझा के बताती हूँ, एंड देन हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को शुरू कर देते हैं। हाँ, माइनस एग्रीमेंट की पोजीशन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका लीगल इफेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, लॉ रिलेटिंग टू द माइनस एग्रीमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय और विथ माइनर will be considered as a void ab initio. तो याद रखो, अभी माइनस एग्रीमेंट इज अ void agreement, क्यों, क्योंकि माइनर इज नॉट अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयरफॉर agreement with or by minor is considered as a void from the very beginning, that is ab initio. और उसके लिए एक फेमस जजमेंट हमें डिस्कस करना है, कौन सा फेमस जजमेंट डिस्कस करना है हमें, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का जजमेंट हमें डिस्कस करना है। हाँ, व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस, देखो थोड़ा सा हम अपनी ओन भाषा में केस को समझने की कोशिश करते हैं, देन आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। इस केस में माइनर जो है, उस माइनर ने क्या किया, देखो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है। इस पर्टिकुलर केस में माइनर ने अपनी प्रॉपर्टी क्या की है, वहां पे मॉर्गेज की है। हाँ, माइनर मॉर्गेज्ड इज प्रॉपर्टी, मॉर्गेज समझते हो ना, इमोबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा के जब लोन लिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, मॉर्गेज कंसिडर किया जाता है। तो माइनर ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है। हाँ, और कितने रुपए के लिए उसने पर्टिकुलरली वो पैसे लिए, वहां पे 20,000 रुपीज उसने क्या किए, बोरो किए। हाँ, माइनर ने कितने रुपए बोरो किए, 20,000 रुपीज बोरो किए, और उसके लिए अपनी प्रॉपर्टी जो है वो क्या की, वहां पे एग्जीक्यूट करके दिए इन द फॉर्म ऑफ अ मॉर्गेज। और अब बाद में माइनर क्या कर देता है, देखो वो पैसे वापस देने से मना कर देता है, और इस मॉर्गेज को कैंसिल करने के लिए अप्लाई करता है ऑन द ग्राउंड कि आई एम अ माइनर, और एन एग्रीमेंट बाय और विद द माइनर इज कंसिडर्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट। हाँ, और वो जो पर्टिकुलर पार्टी है ना जिससे उसने लोन लिया है, वो क्या करता है, माइनर पे अपने सूट फाइल करने के लिए, अपने पैसे रिकवर करने के लिए सूट फाइल करता है, लेकिन कोर्ट हेल्ड करता है कि नहीं, an agreement by or with a minor is considered as a void agreement, therefore this agreement is not enforceable in the court of law. हाँ, और ये मॉर्गेज कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक रूल याद रखना है जो आगे जाके इम्पोर्टेंट होगा, वापस याद रखो, दो लोग हैं। हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट में जनरली बेनिफिशियरी होता है, हाँ, मतलब जिसके बेनिफिट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, और एक जिसपे लाइबिलिटी होती है। तो जनरली लाइबिलिटी किस पे होती है, बोलो, प्रॉमिसर पे। जनरली लाइबिलिटी किस पे होती है, प्रॉमिसर पे, और जनरली बेनिफिट किसका होता है, अपोजिट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या कॉल की जाती है, प्रॉमिसी। हाँ, तो लॉ क्या कहता है, देखो माइनर कैन नॉट बी हेल्ड टू बी लायबल, माइनर को लॉ ने डबल साइड बेनिफिट दिया। नाउ यू विल हैव द क्वेश्चन इन द माइंड कि ये डबल साइड बेनिफिट क्या है। तो डबल साइड बेनिफिट नाम की कंसेप्ट ये है कि माइनर को लॉ ने डबल साइड बेनिफिट दिया इन द सेंस दैट माइनर लायबल तो नहीं है, लेकिन जहां कहीं बेनिफिट की बात आती है ना, तो माइनर विल बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट।
लाइबिलिटी की बात होगी तो माइनर विल नॉट बी लायबल, लेकिन बेनिफिट की बात होगी तो माइनर विल बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट। हाँ, सो आपको एक सेंटेंस बताती हूँ, माइनर कैन नॉट बी अ प्रॉमिसर बट माइनर कैन बी अ प्रॉमिसी। माइनर कैन नॉट बी अ प्रॉमिसर बट माइनर कैन बी अ प्रॉमिसी। तो इसका मतलब देखो, ये जो एग्जाम्पल अभी अभी हमने डिस्कस किया, इसमें माइनर क्या था बोलो, प्रॉमिसर था ना। माइनर ने 20,000 का लोन लिया और प्रॉमिस किया कि वो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देगा और पैसे वापस दे देगा वहां पे। हाँ, लेकिन माइनर ने प्रॉमिस अपना परफॉर्म नहीं किया और इनफैक्ट वो मॉर्गेज क्या करके मांगा, कैंसिल करके मांगा, ये बोल के कि वो माइनर है और नॉट लायबल टू पे एनी काइंड ऑफ द लोन अमाउंट। हाँ, तो कोर्ट ने माइनर के फेवर में डिसीजन दिया एंड इट वाज हेल्ड कि माइनर इज नॉट लायबल। तो हमेशा याद रखना कि जो कर्जा लेता है ना, इज कॉल्ड एज अ मॉर्गेजर, और जिससे कर्जा लिया जाता है इज कॉल्ड एज अ मॉर्गेजी। तो माइनर कभी मॉर्गेजर नहीं हो सकता बट माइनर मॉर्गेजी हो सकता है, ध्यान में आ रहा है। माइनर प्रॉमिसर नहीं हो सकता बट माइनर प्रॉमिसी हो सकता है। हाँ, नाउ व्हाट दिस पर्टिकुलर वर्ड स्टैंड फॉर, कि माइनर प्रॉमिसर नहीं हो सकता बट प्रॉमिसी हो सकता है। अगेन हम वही बात है कि माइनर लायबल नहीं है, लेकिन बेनिफिट की बात है तो माइनर विल बी देयर। मतलब मुझे आपको ये समझाना था कि अगर इसी एग्जांपल में माइनर से किसी ने लोन लिया होता, इसमें क्या किया ध्यान में, माइनर ने लोन लिया, बट अगर समझो कोई और माइनर से लोन लेता तो क्या माइनर वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकता था? तो यस, अगर माइनर मॉर्गेजी है तो माइनर के किसी नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन के थ्रू सूट फाइल करके माइनर अपने पैसे रिकवर कर सकता है। हाँ, माइनर लोन लेता है तो नो लायबिलिटी विल बी देयर, लेकिन माइनर से कोई लोन लेता है तो माइनर कैन enforce that contract and recover his money। अभी के लिए तो हम पॉइंट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट विथ और बाय माइनर इज कंसिडर्ड एज अ void। हाँ, लेट्स चेक आउट, देखो a minor borrowed rupees 20,000 from the B। माइनर से ने क्या किया, वहां पे 20 से 20,000 रुपए बोरो किए। हाँ, एंड एज अ सिक्योरिटी फॉर द सेम एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज इन हिज फेवर। बी के फेवर में मॉर्गेज बना के दिया। He became a major few months later and filed a suit for the declaration that the mortgage executed by him during the minority was a void and should be cancelled। हाँ, क्या हो गया धन में गया इसमें, ये जब मेजर बना तो उसने कोर्ट में सूट फाइल किया कि जब मैं माइनर था तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और मैंने ऐसे ऐसे किसी को मॉर्गेज डीड लिख के दिया और वो मॉर्गेज डीड कैंसिल करके दो। इट वाज हेड दैट अ मॉर्गेज बाय माइनर वाज अ वॉइड। कोर्ट ने भी हेड किया कि यस, ये मॉर्गेज वॉइड है एंड B was not entitled to the repayment of a money। B को अपने 20,000 रुपए वापस नहीं मिले, याद रखो। हाँ, further the money lenders request for the repayment of the amount advanced to the minor as a part of consideration for the mortgage was also not accepted। वो मनी लेंडर मतलब साहूकार या लोन देने वाला क्रेडिटर क्या बोलता है कि कम से कम मेरे एडवांस अमाउंट तो मुझे दे दो, जो मैंने उसको दी है उसका तो रीपेमेंट करो, भले ही मॉर्गेज कैंसिल कर रहे हो, लेकिन minor was held to be not liable even for the repayment of that advance amount। हाँ, it is especially provided in section 10 that a person who is incompetent to contract cannot make a contract within the meaning of the act। जो incompetent to contract है वो क्या नहीं कर सकता, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इवन ये कौन से सेक्शन में दिया गया बोलो, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी दिया गया है वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी। हाँ, रैटिफिकेशन मतलब स्वीकारना। हाँ, देखो मैंने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जब मैं माइनर थी तब किया था, हाँ, और मैं मेजर होने के बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकारती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, तो क्या वहां पे बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा? लॉ कहता है कि नो, क्योंकि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट ही कंसिडर नहीं किया जाता, तो उसको आप मेजर बनने के बाद में भी रैटिफिकेशन मतलब एक्सेप्टेंस, मान्यता नहीं दे सकते, और देते हो तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो वॉइड का वॉइड ही रहेगा। देखो, अ माइनर कैन नॉट रैटिफाई मतलब स्वीकारना द एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी एज द ओरिजिनल एग्रीमेंट इज अ वॉइड ab initio and a void agreement cannot never be ratified। void agreement को ratify नहीं किया जा सकता। ओके, नाउ द पॉइंट हैज बीन दैट कि ऐसे लॉ क्यों बताता है कि माइनर मेजर बनने के बाद में भी
माइनॉरिटी में किए गए एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकता। इसके पीछे का रीजन है कि माइनर का एग्रीमेंट वॉइड ab initio होता है ना, तो माइनर जब मेजर बनेगा तब अगर वो माइनॉरिटी में किए गए एग्रीमेंट को रेटिफाई करता है तो वो रेटिफाई करने के लिए उसको क्या कंसिडरेशन मिल रहा है माइनर को? कुछ नहीं, क्योंकि माइनॉरिटी में बनाए गए एग्रीमेंट का कोई लीगल वैल्यू ही नहीं ना। तो मेजर बनने के बाद जब उसने माइनॉरिटी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी रेटिफाई करना चाहता है, तो वो रेटिफाई करने के लिए माइनर को कुछ नया कंसिडरेशन मिल रहा है क्या वहां पे? नहीं। तो इसीलिए माइनॉरिटी में बनाए गए एग्रीमेंट को इवन आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी भी माइनर रेटिफाई नहीं कर सकता, और अगर रेटिफाई करता है तो उस रेटिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ओके, लेट्स चेक आउट। देखो, a minor cannot ratify the agreement on attaining the majority as the original agreement is a void ab initio and a void agreement can never be ratified. हाँ, example देखो, X a minor make a promissory note in the name of a Y. X minor ने क्या किया? makes a promissory note in the name of a Y. Y से पैसे लिए तो Y को एक promissory note बना के दिए। कब बना के दिए ध्यान में गए? जब वो माइनर था। On attaining the majority, अब वो एक्स अपनी माइनॉरिटी में बनाएगी प्रोमिसरी नोट को रेटिफाई करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो वो कर सकता है कि नहीं? ही कैन नॉट रेटिफाई it, and if he makes a new promissory note in place of the old one, here the new promissory note which he has executed after the attaining majority is a void, being without consideration. Even याद रखो, मेजर बनने के बाद वो नई promissory note भी बना के देता है तो वो नई promissory note भी void ही रहेगी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कब ली गई है? माइनॉरिटी में ली गई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे। हाँ, देन मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि माइनर को लॉ डबल बेनिफिट देता है। हाँ, लाइबिलिटी है तो माइनर कैन स्टैंड हिज हैंड रिंग सेइंग कि आई एम अ माइनर। ओके, अपनी जिम्मेदारी से वो क्या कर सकता है? हाथ छड़क सकता है बोल के कि मैं माइनर हूँ। लेकिन बेनिफिट की बात आती है तो minor will be entitled to the benefit. Okay, so I already told you कि minor cannot be a promiser, but minor can be a promisee हो सकता है। minor cannot be liable, but minor can be entitled to the benefit. हाँ, minor full fledged अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर नहीं बन सकता। ओके, बट माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। माइनर कैन नॉट बी अ मॉर्गेजर, but minor can be a mortgagee. Liability की बात है तो minor will raise hand saying that I'm not liable, but benefit की बात है तो minor will be entitled to that particular benefit. Okay, check out करते देखो, though minor is not a competent to contract, nothing in the act prevent the minor from making the other party to be bound by him. हाँ, to him ध्यान में आ रहा है, भले ही minor other party को liable नहीं है बट माइनर अदर पार्टी को बाउंड करा सकता है। हाँ, दो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, भले ही माइनर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट स्टिल माइनर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट माइनर जो है वो फुल फ्लेश्ड पार्टनर तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होगा? देखो कि अगर फर्म को लॉस होता है तो आपको पता है अगर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी फर्म के लाइबिलिटीज को पे करने के लिए इनफ नहीं होती है तो नॉर्मली पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसमें लाइबिलिटी में इंक्लूड की जाती है, बट दैट विल नॉट हैपन विद द माइनर। तो अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस में जाती है तो पार्टनरशिप फर्म के असेट्स बेचने के बाद में भी अगर पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी खत्म नहीं होती है तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसमें लायबल होगी, बट दैट विल नॉट हैपन विद द माइनर। ओके, माइनर इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर फर्म में लॉस होता है तो minor will be liable only to the extent of his investment. Okay, there will be no unlimited liability on the minor. Okay, तो हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे कि माइनर को लॉ ने डबल बेनिफिट दिया है, डबल प्रोटेक्शन दिया है। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी टू टेक अ बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, but minor cannot be liable for any kind of the liabilities. Minor can be a mortgagee
but minor cannot be a mortgager. Okay, so though minor is not a competent to contract, law तो कहता कि minor is not competent to contract, but minor can be a beneficiary. Law did not stop minor from becoming a beneficiary. Okay, nothing in the contract act prevent the minor from making the other party bound to him. Thus a promissory note duly executed in favor of a minor, मतलब ध्यान में आ रहा है, अब मैंने माइनर से पैसे लिए और मैंने माइनर को प्रॉमिसरी नोट बना के दिए, तो वो पैसे माइनर मुझसे रिकवर कर सकता है. Thus a promissory note duly executed in favor of a minor is not void and can be sued upon by him. Minor उस पे सूट फाइल करके अपने पैसे रिकवर कर सकता है, because though he is not competent to contract, though he is incompetent to contract, may yet accept a benefit. Minor भले ही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है, बट माइनर क्या कर सकता है, देखो बेनिफिट लेने के लिए एंटाइटल्ड है वहां पे. हाँ, a minor cannot become a partner in a partnership firm. However, he may, with the consent of all the partner, admitted to the benefits of partnership. समझ के लो, माइनर पार्टनर नहीं बनता, फुल फ्लेश्ड पार्टनर नहीं होता है, बट माइनर को पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जा सकता है. नाउ एक मॉर्गेज माइनर के फेवर में एग्जीक्यूट किया गया, मतलब मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास के केस के बराबर अपोजिट फैक्ट है यहाँ पे कि माइनर से लोन लिया है, हाँ, और मॉर्गेज माइनर के फेवर में करके दिया है, तो माइनर कौन है वहां पे, मॉर्गेज जी है, तो क्या ये मॉर्गेज एग्जीक्यूट किया जाएगा? आंसर इज यस. व्हेन माइनर टेक्स अ लोन and make a mortgage of his property, minor will not be liable. लेकिन जब मैं माइनर से लोन लेती हूँ और अपनी प्रॉपर्टी माइनर को मॉर्गेज करके देती हूँ, तो वो मॉर्गेज माइनर एग्जीक्यूट कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है. हाँ, जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताती हूँ कि माइनर की जो सूट कोर्ट में फाइल होती है ना, वो उसके गार्डियन के थ्रू या किसी नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू फाइल की जाती है. हाँ, so a mortgage was executed in favor of a minor head, he can get a degree of the enforcement of mortgage. हाँ, मॉर्गेज क्या किया जा सकता है, एनफोर्स किया जा सकता है, जब अगर वो माइनर के फेवर में बनाया गया है वहां पे. हाँ, ध्यान में. सो अप टू द पॉइंट 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, राइट. नंबर 1 डिस्कस किया, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय और विद द माइनर इज कंसीडर्ड एज अ वॉइड. नंबर 2 पॉइंट डिस्कस किया, नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी में बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट को हम मेजर होने के बाद रैटिफाई करें, मतलब एक्सेप्ट भी करें, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होगा. हाँ, देन नंबर 3, माइनर बेनिफिशियरी तो हो सकता है बट माइनर लायबल नहीं हो सकता, तो माइनर भले ही मॉर्गेजर नहीं हो सकता है बट माइनर मॉर्गेजी हो सकता है. ओके, हाँ. नाउ नेक्स्ट देखो, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड द माइनॉरिटी. माइनर कैन ऑलवेज प्लीड द माइनॉरिटी, मतलब याद रखो, अगर समझो किसी 17 साल के माइनर ने एक शॉप में जाके टेलीविजन सेट खरीदा, हाँ, और उसने अपना एज बताया वहां पे 18, हाँ, कंप्लीटेड. ओके, एंड ही वाज लुकिंग लाइक अराउंड 20-21, अच्छा खासा हाइटेड था वो, तो आसानी से उसका एज 20-21 लग रहा था, तो दुकानदार ने बिलीव करके कि वो 21 ईयर का है, हाँ, और क्योंकि उसने बताया कि उसका एज वहां पे 18 कंप्लीटेड है, ये उसने बताया हुआ, तो दुकानदार ने बिलीव किया कि हाँ वो 18 कंप्लीटेड है, और उसको क्या किया, वहां पे क्रेडिट पे माल दे दिया, तो टेलीविजन सेट उसको क्रेडिट पे दे दिया, और माइनर ने उस दुकानदार को अपना पूरा एड्रेस एंड ऑल एवरीथिंग वाज टोल्ड बाय द माइनर टू द दुकानदार. अब दुकानदार बाद में वो पैसे मांगता है और माइनर वो पैसे देने से मना करता है, होता है माइनर आई एम नॉट लायबल. तो क्या इस सर्कमस्टेंसेस में भी माइनर अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है? तो लॉ कहता है कि हाँ, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड अ माइनॉरिटी. ओके, even though he has falsely represented his age, that he was a major. Okay, देखो, a minor can always plead the minority. A minor can always plead minority and is not stopped to do so even where he has taken any loan or entered into any contract by falsely representing that he was a major. Minor ने खुद को falsely major represent करके भी लोन लिया होगा, तो भी माइनर कैन प्लीड द माइनॉरिटी और वो माइनर वहां पे लायबल नहीं होगा. हाँ, तो एक एस्टोपेल रूल मैंने आपको पीछे लॉ में बताया था कि जब कोई फैक्ट आप खुद बताते हो और उस पर बिलीव रख के सामने वाला कुछ एक्ट कर देता है, तो बाद में आप वो फैक्ट मना नहीं कर सकते हो. अब माइनर खुद यहाँ पे बताता है कि मेरा एज 18 कंप्लीटेड है, और बाद में माइनर खुद बोल रहा है कि नहीं, आई एम नॉट 18 कंप्लीटेड एंड आई एम माइनर,
तो क्या ये प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल माइनर को एप्लीकेबल होगा? तो लॉ कहता है कि नहीं, प्रिंसिपल ऑफ अ माइनर एस्टोपेल इज नॉट एप्लीकेबल टू द माइनर। ओके, माइनर ने भले ही खुद बोला था कि मेरा एज 18 कंप्लीटेड है और बाद में बोलता है क्या मैं माइनर, तो बाद में अगर सच में माइनर है तो बोल सकता है। सो माइनर कैन ऑलवेज प्लीड द माइनॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल डिड नॉट अप्लाई टू द माइनर। ओके, now the rule of estoppel cannot be applied against the minor. It means that he can be allowed to plead his minority in defense. Okay, तो माइनर भले ही खुद फॉल्सली अपना एज रिप्रेजेंट करता है तो भी वो बाद में क्या कर सकता है, अपनी माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है। हाँ, वो बाद में बोल सकता है कि माइनर है वो। So as I have told you that the rule of estoppel cannot be applied to the minor, huh? And minor can always plead his minority in a defense, even though he himself has falsely represented his age, huh? And induced the other party to enter into a contract. Minor ने खुद का age गलत बता के other party को अपने साथ contract करने के लिए induce भी किया होगा, तो भी वो बाद में अपनी माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है। ओके, देखो अ माइनर हैज एग्जांपल देखते हैं। हाँ, a minor has falsely induced himself as a major and contracted with Mr. X for a loan of rupees 20,000. Okay, minor ने खुद का क्या किया वहां पे, माइनॉरिटी को छुपा के खुद का एज मेजर बताया और मिस्टर एक्स के साथ 20,000 रुपीज की लोन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। हाँ, when Mr. X asked for the repayment, A denied to pay. अब वो ए माइनर एक्स से पैसे तो लेता है और बाद में जब एक्स अपने पैसे मांगता है तो ये पैसे देने से क्या कर देता है, मना कर देता है। ए डिनाइड टू पे। नाउ ही प्लीडेड दैट ही वाज अ माइनर सो ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, वो प्लीड करता है कि वो माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, सो ही इज नॉट लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ द रीपेमेंट। हाँ, हेल्ड ए कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट। क्यों? क्योंकि माइनर है वो, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड अ माइनॉरिटी। हाँ, however, if he has not spent the same, he may ask to repay, but the minor shall not be liable for the amount which he has already spent, even though he received the same by the fraud. हाँ हाँ, लेकिन अगर माइनर के पास अभी वो अमाउंट है और माइनर ने स्पेंड नहीं की है तो फिर ना मिस्टर एक्स उसको बोल सकता है कि वो पैसे मुझे वापस दे दो। बट अगर माइनर ने वो अमाउंट स्पेंड कर दी है तो फिर मिस्टर एक्स क्या नहीं कर सकते, वहां पे माइनर से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकते। ओके, thus a minor can always plead the minority and is not stopped from doing so even where he had produced a loan or entered into a contract by falsely representing that he was of a full age, when he was in reality a minor. So आपको ध्यान में आ गया? तो माइनर कैन ऑलवेज प्लीड अ माइनॉरिटी। हाँ, और भले ही माइनर ने खुद को फॉल्सली प्रोड्यूस किया होगा कि वो मेजर है और कॉन्ट्रैक्ट किया होगा या लोन लिया होगा, तो भी उस लोन के लिए माइनर लायबल नहीं होगा, क्योंकि रूल क्या कहता है, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड द माइनॉरिटी। हाँ, देन मैं आपको सो फोर्थ पॉइंट क्या था, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड द माइनॉरिटी इवन दो उसने खुद का एज फॉल्सली बताया होगा तो भी वहां पे। हाँ, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या था पता आपको, लायबिलिटी ऑफ द माइनर फॉर ए नेसेसरीज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ये पॉइंट इटसेल्फ खुद एक शॉर्ट नोट पॉइंट करके पेपर में आपको आ सकता है, लायबिलिटीज ऑफ द माइनर फॉर द नेसेसरीज। हाँ, अब ना आपको क्या करना है, नेसेसरीज ऑफ द लाइफ जो है वो अगर किसी ने माइनर को दी है या माइनर पे जो डिपेंड है उसको दी है तो उसके लिए माइनर लायबल होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी कौन लायबल होगा बोलो, ओनली माइनर की प्रॉपर्टी लायबल होगी, माइनर की खुद की अपनी ओन लायबिलिटी वहां पे नहीं रहेगी। हाँ, लायबिलिटी ऑफ द माइनर फॉर किसके लिए देख रहे हैं हम लोग, नेसेसरीज के लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, नाउ आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि समझो मैंने किसी माइनर को ट्यूशन दिया, हाँ, और अब वो मेरी ट्यूशन की फीस नहीं पे कर रहा है, तो क्या मैं माइनर से वो ट्यूशन की फीस रिकवर कर सकती हूँ? आंसर विल बी यस, बिकॉज आई हैव गिवन अ माइनर necessities of the life, food, education and educational related things and the things which are required for the livelihood, that all will be considered as the necessaries of the life. तो अगर हमने माइनर को necessaries of life दी है तो माइनर विल बी लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर necessaries of life। हाँ, लेकिन यहाँ पे माइनर विल नॉट बी पर्सनली लायबल, याद रखो हमेशा, माइनर स्टेट विल बी लायबल। अगर उस माइनर को हमने कुछ नेसेसरीज ऑफ लाइफ दी है और माइनर की अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, देन माइनर विल नॉट बी लायबल। फिर माइनर वहां पे लायबल नहीं होगा। अगर माइनर की कुछ स्टेट है, माइनर की कुछ प्रॉपर्टी है,
तो माइनर लाइबिलिटी विल बी ओनली आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्टेट और अ प्रॉपर्टी। हम उस माइनर को जैसे कि काम पे लगा के लिए या और उसके पैसे सेटिस्फाई करके लिए, ऐसे वहां पे नहीं हो सकता। या माइनर ने आपके पैसे नहीं दिए इसलिए आपने माइनर पे कंप्लेंट की और फिर माइनर को पुलिस ने पकड़ा एंड ऑल दैट, ऐसे भी नहीं हो सकता। ओके, सो माइनर इज लायबल फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू हिम या एनीवन हु इज डिपेंडिंग ऑन हिम। जैसे कि किसी माइनर का उसका अपना छोटा भाई है जो उस माइनर पे डिपेंड है, हाँ, और आपने नेसेसरीज ऑफ लाइफ उस माइनर के छोटे भाई को दिए जो माइनर पे डिपेंड है, हाँ, तो उसके लिए भी माइनर की स्टेट क्या होगी, वहां पे लायबल होगी, हाँ। And now one more important point which you should keep in mind in the our own language is the minor is liable for necessities of the life। याद रखो, necessities of the life के लिए वो liable नहीं होगा। ओके, necessities of the life क्या होता है बोलो, अनलिमिटेड होते हैं, हाँ। जैसे कि अगर मेरे पास टू व्हीलर है तो मुझे लगेगा फोर व्हीलर आ जाए, मेरे पास मारुति आ जाए तो मुझे लगेगा मर्सिडीज आ जाए, मुझे लगेगा मैं फ्लाइट से ट्रैवल करूं। सो नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ अनएंडिंग है। Minor is not liable for the necessities of the life. Okay, minor is liable for the necessaries of the life. हाँ, तो simple है, minor is liable for necessaries of life supplied to him. Number two, minor is liable to the necessaries of life supplied to anyone who is depending on the minor. Number three, हाँ, minor is liable for किसके लिए liable होगा वहां पे minor, any necessary supplied to anyone who is depending on the minor. Okay. नंबर फोर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, माइनर विल नॉट बी पर्सनली लायबल बट इट इज द माइनस स्टेट दैट विल बी कंसिडर्ड एज द लायबल। ओके, हाँ, अगेन एक छोटा सा और पॉइंट दिमाग के अंदर डाल के लो कि अगर माइनर को नेसेसरीज ऑफ लाइफ खरीदने के लिए लोन दिया गया, याद है हमने पीछे एक पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया था कि माइनर को लोन दिया तो वो लोन रीपेमेंट करने के लिए माइनर लायबल नहीं होगा, हाँ, क्योंकि माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनीथिंग। ओके, तो माइनर को अगर नेसेसरीज ऑफ लाइफ खरीदने के लिए लोन दिया गया तो याद रखना माइनर विल बी लायबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लोन। हाँ, देखो क्या गया, द केस ऑफ नेसेसरीज ऑफ द सप्लाई टू द माइनर or to other person whom such a minor is legally bound to support is governed by section 68 of the Indian Contract Act। हाँ, नेसेसरीज ऑफ द लाइफ जो माइनर को सप्लाई किए जाते हैं उसको कौन सा सेक्शन आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 68 आता है। हाँ, अ क्लेम फॉर द नेसेसरीज सप्लाइड टू द माइनर इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। याद रखना, इवन दो माइनर इज नॉट लायबल, हाँ, फॉर एनी काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, बट अगर माइनर को नेसेसरीज ऑफ द लाइफ सप्लाई किए तो उसके लिए माइनर लायबल होगा वहां पे। हाँ, बट अ माइनर इज नॉट लायबल फॉर द प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस, हाँ, एंड नेवर फॉर मोर देन द वैल्यूज ऑफ द नेसेसरीज। हाँ, माइनर ने प्रॉमिस किया मैं 10,000 दे दूंगा तो माइनर 10,000 के लिए लायबल नहीं होगा, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ अ नेसेसरी सप्लाई टू हिम, और माइनर विल नॉट बी लायबल फॉर अ मोर देन द वैल्यू ऑफ द नेसेसरीज। हाँ, इवन दो उसने प्रॉमिस ज्यादा के लिए किया है बट उसकी लायबिलिटी बस कितने के लिए होगी बोलो, वहां पे नेसेसरीज ऑफ द लाइफ के लिए उसकी लायबिलिटी होगी। हाँ, नाउ देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द माइनर बट ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल। ऑलरेडी समझा है, माइनर भले ही नेसेसरीज ऑफ द लाइफ के लिए लायबल है बट माइनर की पर्सनल कोई लायबिलिटी वहां पे नहीं है, इट इज अ माइनस प्रॉपर्टी दैट विल बी हेल्ड टू बी लायबल। हाँ, टू रेंडर माइनस स्टेट लायबल फॉर अ नेसेसरीज दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। व्हाट आर दैट टू कंडीशन, देखो, नंबर वन, the contract must be for the goods, हाँ, reasonably necessary for his support in the station of the life। हाँ, जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट था वो ऐसे गुड्स के लिए चाहिए वो उस पर्टिकुलर माइनर के लाइफ के लिए नेसेसरी थे। हाँ, then whereas the contract must be for the goods reasonably necessary for his support in the station in the life। हाँ, and next one, minor must not have already sufficient supply of those necessaries। हाँ, माइनर के पास ऑलरेडी 10 बुक्स है और मैंने उसको 11 सेम टाइप का बुक दिया है तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द नेसेसरीज ऑफ द लाइफ। ओके, माइनर के पास ऑलरेडी 10 ड्रेस है और मैंने उसको 11 ड्रेस दिया वहां पे, हाँ, तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द नेसेसरीज ऑफ द लाइफ। माइनर आता है और मेरे शॉप से 10 फैंसी ड्रेस खरीदता है, that cannot be considered as the necessaries of the life। Okay, so minor should not have already sufficient supply of these necessaries। हाँ, उसके पास ऑलरेडी वो चीजें बहुत हैं और हमने वापस दी तो वो लग्जरी बन जाएगी, राइट, वो नेसेसरी नहीं बचेगी। हाँ, so necessaries मतलब क्या होगा, देखो, which are necessarily essentially needed by a minor। हाँ, they cannot include the luxuries or costly or unnecessary article
और एक चीज यहाँ पे याद रखना, उस व्यक्ति के लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि उसके लिए नेसेसरीज क्या होंगे, याद रखना। हाँ, अभी कोई माइनर लंदन में रहता तो उसके लिए विंटर क्लोथ्स क्या हो जाएंगे बोलो, वो नेसेसरीज ऑफ द लाइफ कंसिडर किए जाएंगे। हाँ देखो, नेसेसरीज एक्सटेंड टू ऑल सच थिंग्स एज रीजनेबली अ पर्सन वुड सप्लाई टू एन इन्फेंट इन दैट क्लास ऑफ अ सोसाइटी टू व्हिच इन्फेंट बिलोंग। इन्फेंट जिस क्लास ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करता है ना, उस सोसाइटी में जो चीजें नेसेसरी कंसिडर की जाती है उसी को नेसेसरीज ऑफ द लाइफ कंसिडर किया जाएगा वहां पे। हाँ, एक्सपेंसेस ऑन द माइनर्स एजुकेशन, हाँ, या फिर अगर माइनर की डेथ वगैरह हुई है तो माइनर के अंत संस्कार विधि का खर्चा, ऑन फ्यूनरल सेरेमनीज कम विद इन द स्कोप ऑफ द नेसेसरीज। हाँ, ध्यान में आ रहा है, माइनर के एजुकेशन पे किया गया खर्चा, फ्यूनरल सेरेमनीज पे किया गया खर्चा, all these will come into the necessaries of the life. हाँ, the whole question turns upon the minor status of the life. हाँ, ultimately हाँ, क्या important है कि माइनर के स्टेटस इन लाइफ के हिसाब से उसके नेसेसरीज क्या होंगे, डिसाइड होंगे। हाँ, यूटिलिटी रादर देन ऑर्नामेंट इज द क्राइटेरिया। ओके, ऑर्नामेंट इज नॉट द क्राइटेरिया, समझ में आ रहा है? उसको डेकोरेट करने के लिए जो चीजें होंगी ना माइनर को, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द नेसेसरीज ऑफ द लाइफ। हाँ, द थिंग्स विच आर यूटिलिटी प्रोडक्ट विच आर रिक्वायर्ड, जो उसके उपयोग के लिए आने वाली चीज है, वो नेसेसरीज ऑफ द लाइफ कंसिडर की जाएगी। हाँ, एग्जाम्पल देखो, Shruti being a minor purchased a laptop for her online classes of 70,000 on the credit from a shop। हाँ, श्रुति एक माइनर है, उसके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, उसने एक शॉप से लैपटॉप खरीदा क्रेडिट पे 70,000 के। हाँ, बट हर असेट फुल पे ओनली 20,000, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी बस कितने रुपए की है, 20,000 रुपए की। तो शॉपकीपर कुड नॉट होल्ड श्रुति पर्सनली लायबल, तो श्रुति से 50,000 तो कोर्ट में केस फाइल करके शॉपकीपर रिकवर नहीं कर सकता। तो श्रुति से मैक्सिमम शॉपकीपर कितना रिकवर कर सकता है बोलो, 20,000, जितना श्रुति का असेट है वहां पे। हाँ, एंड कुड रिकवर ओनली द अमाउंट रिकवरेबल थ्रू हर असेट, दैट इज अप टू कितना रिकवर कर सकता है बोलो, ओनली 20,000 रुपीज वो रिकवर कर सकता है वहां पे। हाँ, देन में गया, सो माइनर इज ए लायबल फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू हिम। Necessaries means which are utility according to the status of that particular minor. Minor is liable for the necessaries and not the necessities or luxurious or costly products. Minor is liable for the necessaries supplied to him also and those who are depending on him also. Minor is liable for necessaries, but it is the minor's estate that will be liable and no personal liability will be there on the minor. Okay, so in this particular session we have finished out about minors liability। एक टोटल हमने क्या किया यहाँ पे 6 पॉइंट आज खत्म कर दिए। हाँ, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, माइनर का एग्रीमेंट जो है, an agreement by or with a minor is considered as a void, no ratification after attaining the majority। हाँ, then minor can be a beneficiary, he can take a benefit out of contract, but minor is not liable। Minor can always plead minority even though he falsely represented his age। हाँ, and minor's liability for the necessaries। हाँ, ये हमने आज 5 पॉइंट अबाउट द माइनस एग्रीमेंट क्या किए, डिस्कस किए। टोटल मिला के 15 पॉइंट्स है। विल ट्राई टू फिनिश आउट दिस पर्टिकुलर रिमेनिंग 10 पॉइंट्स in our next session।